ہیسکو کی بدترین کارکردگی تاجروں کو بھی سڑکوں پر لے آئی۔ شہر کے سب سے بڑی اناج منڈی کے تاجروں نے حالات نہ بدلنے پر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ ڈویژنل بیورو چیف کلیم اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ ہیسکو کی ناقص کارکردگی نے جہاں گھریلو صارفین کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہیں اب تاجر بھی ادارے کی ہڑدرمی سے سڑکوں پر آ گئے ہیں، جبکہ تاجروں نے بجلی چوری کا ذمہ دار ہیسکو افسران کو ٹھہراتے ہوئے حالات نہ بدلنے پر تاریخی احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ یا یہ اوور بلنگ، یہ جو چکر ہے نہیں، اگر جب تک اس کو کنٹرول میں نہیں کریں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ریٹ بڑھاتے ہیں وہ جائز ہے، ہمیں بھی پیسے پورے کرنے ہیں۔ شہر کی سب سے بڑی اناج منڈی میں 16 گھنٹے کی بجلی کی بندش بدترین ہے۔ معاشی حالات میں تاجروں کی تباہی کا بھی سبب بن گئی ہے۔ ہیسکو کو خدارہ کچھ عقل دی جائے، وہ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو پاکستان کی کریم ہے، جو بزنس مین ہے، جو ان سے کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے مزدور اور آپ کے تنخواہ دار طبقہ چل رہا ہے، اگر ان کو مار دیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا۔ آج کل 50 سے 60% جو بزنس ہے وہ ٹوٹل الیکٹریسٹی کے اوپر چلا گیا ہے۔ آن لائن بزنس ہو رہا ہے، آن لائن سارا ورک ہو رہا ہے، تو خدارہ حکومت کو چاہیے عملی اقدامات کرے۔ تاجروں اور گھریلو صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ہیسکو کی کارکردگی کا نوٹس لے کر فوری ریلیف فراہم کرے۔ لال سہانرہ میں دریائے ستلج پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، سینکڑوں فصلیں زیر آب آ گئیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ریلیف کیمپ لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے راشد لطیف۔ لال سہانرہ میں دریائے ستلج کے پانی کی سطح میں اضافہ، پانی کی سطح میں اضافے سے نزدیکی فصلیں زیر آب آ گئی۔ پانی کی سطح میں گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پل نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو نقل و حرکت میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہری اب لکڑی سے بنی ہوئی کشتیوں سے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر دریا کے اس پار سے اس پار آتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے یہاں کوئی ریلیف کیمپ نہیں لگایا گیا۔ یہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد کشتیوں کی مدد سے گزرتے ہیں، کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے کہ یہاں پل کی تعمیر اور ریلیف کیمپ لگایا جائے۔ کیمرہ مین یوسف سہو کے ساتھ راشد لطیف لاک، سچ نیوز، لال سہانرہ۔ بارشوں کے سبب نہروں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ سندھ کے علاقوں میں تلہار، گھٹکی اور جیکب آباد میں نہر میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں، گھر اور سکول زیر آب آ گئے۔ مانسون بارشوں کے سبب دریاؤں میں پانی کی سطح حد سے تجاوز کرنے لگی ہے۔ نہروں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے شگاف پڑ گئے ہیں۔ گھڑکی کے گاؤں ناڑی گڈانی کے قریب RD7 پر مسوا نہر میں 50 فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ 3 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ کپاس اور چاول کی سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئی ہیں۔ جیکب آباد میں ڈھل موسیٰ آل آباد نہر کو 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ پانی شہر کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ پانی اسکول سمیت گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہے۔ ضلع بدین کی تحصیل تلہار کے گاؤں فضل پٹھان میں میرواہ کینال کو 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ رانجو پٹھان، پپو پٹھان اور رانجو کولی کی زمین پانی کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ چاول کی کاشت فصل بہہ گئی ہے۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ تاحال نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے بڑے نقصان کا خدشہ ہے۔ ضلع اپر چترال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ جارخوں کا رابطہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ شندور، لاسپور، سور لاسپور جانے والا راستہ منقطع ہو گیا۔ وادی جارخوں کے سیلابی ریلے سے 5 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ ضلع اپر چترال میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ وادی جارخوں کے گاؤں میرا گرام نمبر 2 میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ 5 گھر مکمل طور پر تباہ اور 2 جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ 10 کے قریب دکانیں بھی سیلاب برد ہو گئیں۔ سیلاب سے فصلوں، باغات اور جنگلات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ بروغل کے مقام پر چانتر گلیشیئر خطرناک حد تک دریائے جارخوں چترال میں سرک گیا۔ حافظ آباد میں چند منٹوں کی بارش نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ حافظ آباد میں طوفانی بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیاں اور سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی۔ سڑکوں پر پانی جمع رہنے سے معمولات زندگی دھرم بھرم ہو گئی۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ عمرکوٹ میں گیسٹوں نے پنجے گاڑ لیے۔ بارشوں کے ساتھ موذی امراض پھوٹ پڑے۔ مونسون کے باعث موسلادھار بارشوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ بارش کے بعد ضلع بھر میں گیسٹرو اور ملیریا تیزی سے پھیلنے لگا۔ ایک روز کے دوران 45 سے زائد گیسٹرو کے کیس، جبکہ 3 سانپ کاٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملیریا، ڈائریا، ہیضہ، کھانسی، گلے اور سانس کی بیماریوں سے متاثر زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ سول ہسپتال عمرکوٹ میں ایک بیڈ پر 2 مریضوں کا علاج ہونے لگا۔ واٹر سپلائی کی لائنوں میں مضر صحت پانی پینے سے گیسٹرو کے مریض کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ گیسٹرو کے تیزی سے پھیلنے سے شہری احتیاط کریں، پانی ابال کر استعمال کریں۔ سیالکوٹ کی اہم سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ ایئرپورٹ روڈ پر سیوریج پائپ لائن کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے، جس کے باعث شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
सियालकोट एयरपोर्ट रोड पर सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा ताहीर का शिकार है। एयरपोर्ट को जाने वाला रोड अरसा 3 साल से हस्ता हाली के बायस टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2-3 साल से रोड खराब है। यहाँ पे बारिश का गंदा पानी खड़ा हो जाता है, मस्जिद में नमाजी आते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारा कारोबार इतना मुतासर हुआ है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज लाइन बिछाने वाले ठेकेदार काम बीच में छोड़कर चले गए हैं। मंसूबे की ताहीर के बायस शहरियों का गंदे पानी से गुजरना मुहाल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। नौशहरा का ज़ख़ीर और जलोज़ई सर्विस रूट टूट फूट का शिकार हो गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तहसीन ओल इब्रार। नौशहरा के ज़ाहिल और जलोजी सर्विस रोड टूट फूट का शिकार। इस सर्विस रोड पर कई गाँव, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, बटहश और कई कारखाने मौजूद हैं, मगर सर्विस रोड में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से शहरियों के लिए सरदर्द बन गया है। यहाँ पे फैक्ट्री भी है, बड़ा खुशकी भी है, और आने वाले वक्त में ये अभी से ये दर्द सर्द बने हुए, क्योंकि यहाँ पे कड़े बहुत ज्यादा है। इस सर्विस रोड पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से रोड रोज बरोज खराब होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत और कारखानों के मालिकान से अपील की है कि इस रोड को दोबारा तामीर किया जाए ताकि हमारे लिए भी और गाड़ियों के लिए भी आसानी हो जाए। तहसीन उल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। दीरबाला में अशेरी दरा रोड पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की उम्रें 16 और 18 साल है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कार सवार अशेरी दरा से दारा वड़ा हज से वापस आने वाले रिश्तेदारों का इस्तकबाल करने दारा वड़ा आ रहे थे। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू की मेडिकल टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सनावा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खुरुनोश नायाब हो गईं। ओपन मार्केट में दालें और सब्जियां सरेआम इजाफी निर्खों पर फरोख्त होने लगीं। शहरियों ने आला हुकाम से गिराम फरोशों के खिलाफ इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनामा और गिरदनवा में अवामी रिलीफ के लिए कैंप किए गए यूटिलिटी स्टोर पर अरसा कई दिनों से आटा, चीनी, चावल नायाब हैं। शहरी सस्ती अशिया लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आते तो जरूर हैं, लेकिन आटा, चीनी, चावल ना मिलने की वजह से ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो, आटा 130 रुपए किलो और चावल 350 रुपए किलो में मिल रहा है। चावल मौजूद है, ना आटा मौजूद है, ना चीनी मौजूद है। हम लेने आए हैं लेकिन सामान नहीं मिल रहा। बाजार से चीनी 140 रुपए मिल रही है, आटा 130 रुपए मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि अवाम की रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर अहम जरूरत की अशिया ना होने से शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, चावल फराहम किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे समीउल्ला। मुजफ्फरगढ़ में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का कचूमर बनाकर रख दिया। हालिया दिनों में ही आटा, चीनी में भी इजाफा देखने में आया है। आटे के 15 किलो के थैले की कीमत 1900 से बढ़कर 2050 रुपए हो गई। चीनी इसी तरह 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसी तरह खाने पीने की तमाम तर अशिया खुर्दनोश में भी इजाफा होने से शहरियों का 2 वक्त की रोटी का असूल भी छीन लिया। मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, और बच्चे हैं स्कूल के, बच्चों के स्कूल की किताबें नहीं ले सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते। आटा 150 रुपए किलो है, चीनी भी 150 रुपए किलो है। हर चीज़ में आग लगी हुई है। मुर्गी है जो वो 700 रुपए किलो पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने जीना 2 बार कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से महंगाई को कंट्रोल करने की अपील की है ताकि गरीब आदमी को भी 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर आए। कैमरा टीम के साथ समीउल्ला, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी गई, मगर ट्रांसपोर्टरों की मनमानियाँ बरकरार हैं। किरायों में कमी ना की गई। इसी पर देखते हैं गड़ा मोड़ से नूरान लियाकत की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ अवाम को न मिल सका। ना तो महंगाई कम हुई और ना ही ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में कमी की। कानून नाफिज करने वाले अदारे खामोश तमाशाई बनकर अवाम को लुटता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान 2 तरह के माफियाज में घिरा हुआ है, एक अवामी माफिया है, एक हुकूमती माफिया। अब हुकूमती माफिया ने पेट्रोल की कीमतें घटाई हैं, लेकिन ये
जो भी पेट्रोलियम मसनूआत पे चीज़ें चल रही हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह, इसने कीमतें नहीं घटाई। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा आवाम को देने के लिए अदारों को मुतहर्रिक होना होगा, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्टर इनको दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ नौरान लियाकत, सच न्यूज, गढ़ा मोड़। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लगे रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोपहर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर हुसैन। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जामुन 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि केला 200 रुपया दर्जन, आम और आड़ू 300 रुपए किलो में दिए जा रहे हैं। सब्जियों में भिंडी, करेला और कद्दू 200 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि धनिया की 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, मन चाहे रेट पर सब्जी और फ्रूट फरोख्त किया जा रहा है। कि हम भिंडी 120 रुपए किलो दे रहे हैं, क्योंकि हमें 500 रुपए दड़ी पड़ रही है, 100 रुपए खरीद पड़ रही है हमें। हम 120 रुपए किलो बेचे, 10-20 तो हमारा बनता है ना। और लोगों को चाहिए कि वो आड़तियों से बात करें, हम तो मुलाजिम बंदे हैं, 10-20 हमारा हक बनता है। सब्जी की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी को भी रिलीफ मिल सके। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। खुशाब में महंगाई ने पंजे खा लिए। अशे खुरनोश की कीमतों की ऊंची उड़ान के बाद अब नान भाइयों ने भी नान रोटी की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। अहमद नवाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह खुशाब में भी महंगाई का तूफान थम न सका। इशाए खुर्दनोश की कीमतों की ऊंची उड़ान के बाद अब नान भाइयों ने नान और रोटी की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया है, जिससे आम शहरी शदीद मुतासर दिखाई देता है। कि मजदूर बनना इतनी आमदन का मेरा जरिया नहीं है। आटा लगे तो चिकन नहीं पूरा होता, चिकन लगे तो आटा नहीं पूरा होता। हुकूमत को चाहिए सान कुछ मेहरबानी करके साढ़े वास्ते को रिलीफ दें। एक तरफ मसनूई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, तो दूसरी तरफ चिकन के रेट में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग परेशान दिखाई देते हैं। लोगों का कहना था कि हमारे लिए अब बच्चों का पेट पालना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। मुहर्रम का पहला जुमा अवाम ने कब्रिस्तानों को रुख कर लिया। पाक पतन के शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल। मुहर्रम और हराम का पहला जुमा है। अवाम का समंदर कब्रिस्तानों में उमड़ है। अपने प्यारों की कब्रों पर कोई फातिहा खानी कर रहा है तो कोई कुरान खानी। हर लोग आंदे रहंदे, लेकिन आ साल दे विच एक महीना जिहड़ा आंदा है, ये बड़ा नेक महीना हुंदा है। इहदे विच गमशुदा बंदे और अपने अफसोस वास्ते अपने वडेरियां नूं, अपने बावां भैणां नूं, निक्कियां नूं, जिन्हां नूं परचावना हुंदा है, आके अफसोस करदे ने, खत्म दिवा देन। मुहर्रम और हराम में अमूमन कब्रिस्तानों में रश रहता है, लेकिन कोई अगरबत्ती और गुलाब के फूलों से कब्रों को सजा रहा है, कुछ अपने प्यारों की कब्रों को पुख्ता कर रहे हैं और कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक कच्चे गारे से लिपाई भी कर रहे हैं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाक पतन शरीफ। मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। उलमाए ज़ाकिरीन ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल में मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा का आगाज़ हो गया। चकवाल की मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए उलमाए ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल मसैब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किया। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए ज़ाकिर अमीरुल हसन काज़मी और ज़ाकिर वसीम आवाज़ बलोच का कहना था कि वाक़े करबला हमें सब्र इस्तेकामत, हक पर डट जाने और सच का साथ देने का सबक देता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा का सरमाया कुल है। मजलिस अज़ा का इत्माम मुतवल्ली चौधरी अज़हर अब्बास ने किया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और मजलिस अज़ा में आने वालों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। जिला की मरकजी शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अतीकुर रहमान। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए टंडोलियार पुलिस की जानिब से जिला भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत SSP सैयद सलीम शाह ने की। पुलिस, SHOs, SDPOs साथ हैं और रेंजर्स की नफरी भी है। और जैसे कि हमारा सिक्योरिटी प्लान मुहर्रमुल हराम का जारी हो गया है, जिसमें 1700 के करीब नफरी डिप्लॉयड होगी। उसके अलावा जो है वो मजमूई तौर पे सर्च ऑपरेशंस, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। फ्लैग मार्च में पुलिस रिस्पांस यूनिट, ऑपरेशन विंग, RRF पुलिस और दीगर पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च SSP ऑफिस से शुरू होकर अहम शाहराहों और तीनों तालकों से होता हुआ शहर में इख्तिताम पजीर हुआ। SSP सैयद सलीम शाह का कहना था कि यौम आशूर ये मैसेज देता है भाईचारे का, अमन का, सब्र का और बर्दाश्त का। इंशाअल्लाह मुहर्रम
मुहर्रम उल हराम पीसफुल होगा। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज, टंडोवाला यार। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की 15 रोजा तकरीबात जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं पाकपतन से AD शाहिद की रिपोर्ट में। पाकपतन में बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की 15 रोजा तकरीबात इस वक्त अपने पूरे अरूज पर पहुंच चुकी हैं। उर्स मुबारक की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कफल कुशाई 5 मुहर्रम उल हराम की शाम को अदा की जाएगी, जो शब आशूर तक जारी रहेगी। इन 5 रातों में अंदरून व बैरून मुमालिक से आए लाखों अकीदतमंद ज़ायरीन बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल करेंगे, जिनकी सिक्योरिटी के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने के लिए 3000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इसके अलावा दरबार पर जाने वाले तमाम रूट्स पर आहनी गेट लगा दिए गए हैं। शहर भर की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए DPO पाकपतन कंट्रोल रूम से खुद करेंगे। उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन तकरीबात को के पीसफुल इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। तारिक वलायत का कहना है कि उर्स पर आने वाले ज़ायरीन और शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसे मैं और मेरी पुलिस फोर्स हर कीमत पर मुमकिन बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। सिंध की तारीख वैसे तो सदियों पुरानी है, जिसमें 300 साल कदीमी दादू से फासले पर वाक़े खुदा आबाद मस्जिद अभी तक इस वक्त की तामीराती सिकाफत और तख्लीक कारी का शाहकार है। इस मस्जिद को इस वक्त सिंध पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह मियाँ यार मोहम्मद खलोड़ों ने अपने तख्तेगाह के तौर पर तामीर करवाया था। इसकी बनावट और तारीख पर रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। सिंध की तारीख वैसे तो हजारों कदीमी मकामात से आशनास है। ऐसा ये कदीमी उर्सा दादू से थोड़े ही फासले पर वाक़ खुदाबाद मस्जिद अभी तक उस वक्त के तामीराती हुनर, सकाफत, तख्लीक कारी का शाहकार है। इंडस हाईवे के मकाम पर वाक़ खुदाबाद मस्जिद सन 1718 ईस्वी में उस वक्त के सिंध के हुक्मरान मियाँ यार मोहम्मद कलोड़ ने अपने तख्तगाह के तौर पर तामीर करवाई थी, जो कि अभी तक कायम है। इस मस्जिद की खूबसूरती के लिए 18 छोटे छोटे गुंबद और 3 बड़े गुंबद बनाए गए। इसकी छत और नीचे तहखाना भी कायम किया गया। इलाके वासी बताते हैं कि इस मस्जिद की छत पर गुंबदों के दरमियान दीवारों पर उस वक्त में बाजार कायम हुआ करती थी। इस मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल होने वाली चुन और चुरोली, जिसने इस मस्जिद को और भी खूबसूरती बख्शी और लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। इस कदीमी उर्से खुदाबाद मस्जिद को देखने के लिए दुनिया समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सियाह आते हैं और उस वक्त की तख्लीक कारी देख कर हैरान रहते हैं। बहुत पुरानी सुनते थी मस्जिद तामीर हुई है, 350 साल हो गए। इसको लोग बोलते थे तो बहुत अच्छी है, तो हम भी इसके लिए आ गए। हमने कहा हम भी खुदा का घर है, देख लें। जरूरत इस अमल की है कि हुकूमत ऐसे कदीमी विरसों को महफूज बनाने के लिए ठोस इकदाम उठाए। कैमरामैन टीम के हमरा आमिर शहदाद खान, सच न्यूज, दादू। हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। जंग का रिहायशी असद माजूर होने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रहा। मज़ीद जानते हैं तसद्दुक अब्बास की रिपोर्ट में। झंग के आका पीर कोट धाना का रिहायशी तसव्वर अब्बास ने अपनी माजूरी को मजबूरी ना समझा। पैदाइशी पोंगियों की वजह से माजूरी का शिकार, मगर हिम्मत न हारी। गोंगली टाफी का ठेका लगाकर इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहा है। भीख मांगने से मजदूरी को तरजीह दी। तसव्वर 4 भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। इस मुश्किल वक्त में अपने और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। दिन में 200 से 300 कमाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज, 18 जारी, झंग। थल स्टेडियम नूरपुर थल में नेज़ाबाजी के मुकाबलों का मैदान सज गया। थल के इस रवायती और पसंदीदा खेल में सुबह भर से घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। मजीद बता रहे हैं नूरपुर थल से अब्दुल हमीद चौधरी। थल स्टेडियम नूरपुर थल में नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से घोड़सवारों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। थल स्टेडियम में होने वाले 2 रोज़ा नेज़ाबाजी के मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान राना थे। मैं एहलियाने नूरपुर थल को दिल की अथाह से इतना शानदार इवेंट सेलिब्रेट करने में मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर MC साद वकास, इनकी टीम, CO MC नूरपुर थल बड़े शॉर्ट नोटिस में और इतने सख्त जो मौसमी हालात में बड़ा अच्छा इवेंट
हर तरह के इसमें फ्लेवर मिले, लोगों ने बहुत इंजॉय किया। नेज़ाबाजी के मुकाबलों में जंग, डीजी खान, बकर, सरगोदा समेत दीगर अजला से आने वाले घोड़सवारों ने थल की इस रवायती खेल को पेश किया और शायकीन से खूब दाद हासिल की। आखिर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले खिलाड़ियों में खूबसूरत ट्रॉफियां और नकद इनाम तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज़, नूरपुर थल। सूरज का पारा हाई हुआ तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। गर्मी को कम करने के लिए सादिकाबाद के शहरियों ने ठंडे ठंडे मशरूबात और गोले गंडे खाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इस पर हमादुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सूरज और चिलचिलाती धूप ने हर एक को परेशान कर रखा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गलियों बाजारों में गोले गंडे के ठेले भी सज गए। शहरी ठेलों पर रंग बिरंगे मिठास से भरे गोले खाते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ठंडा मीठा बर्फ का गोला आइसक्रीम से भी ज्यादा लज्जत बख्श है। वक्त के साथ गोला गंडे में भी नित नई चीजें शामिल हो गई हैं, जिससे उसका जायका दुबाला हो गया है। बर्फ पर मुख्तलिफ जायकों और रंगों की मशरूबात, तखम, मलंगा, बादाम, चॉकलेट और सवैयों जैसे अज्जा से भरपूर ये गोला गंडा खाने में तो लजीज है ही, मगर इसको बनते देखना भी किसी दिलचस्प मंजर से कम नहीं। गोला गंडा छोटे क्या बड़े सबका मन पसंद है, जो सस्ता भी है और फरहत बख्श भी। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। उबाड़ो के नवाई इलाके बगड़ाकोरी से 4 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान को पुलिस ताहाल बाजियाब न करवा सकी। उबाड़ो के नवाई इलाके बगड़ा के रिहायशी को 4 रोज कबल मुसल्ला डाकुओं ने खेतों से अगवा किया था। नौजवान के वर्सा का कहना है कि 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस नौजवान को बाजियाब न करवा सकी। मुगवी नौजवान के घर में कोहराम मच गया। मुगवी के बच्चे और वालिदैन गम से निडाल हैं। वर्सा ने IG सिंध से नोटिस लेकर नौजवान की बाजियाबी यकीनी बनाने की अपील की। सादकाबाद के थाने भोंग पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई की। 5 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मुगवी छोड़कर फरार हो गए। डाकू ने 4 अफराद को चंद रोज कबल बाग से और एक को खेतों से अगवा किया था। पुलिस ने 5 मुगवियों को बाहिफाजत तहवील में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी का फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।